बहुत गिरी चुरी शादियाँ देखी है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत अनजान लोगों से मिल रही हूँ। So her voice attracted me. और we were boating on this river. बहुत अच्छा लग रहा है. Actually क्या है कि we are very different individuals, you know. We started chatting on Skype because she has a giving nature. Everyone in his family is very nice, very polite. She is extremely organized. I'm very happy to meet him. फिल्मी सा वैसे ही था कि I should get on my knee and propose her. Because everyone is so happy. Actually she is poetic and then I proposed. मुझे ऐसा लगा that I want to spend the rest of my life with this man. People notice over a period of time. His name is Vikrant. Marriage, I think, is a leap of faith क्योंकि beyond the horizon क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है. So बचपन से I was never the kind of girl जो who dreams about her wedding ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि बहुत टाइम है. But I think at the end of the day when you meet the right person तो वो एक अंदर से आता है कि this is it. तो I think विक्रांत के साथ ऐसा हुआ मेरे साथ. When I met him मुझे ऐसा लगा that he is first of all तो उनकी personality मुझे बहुत अच्छी लगी. He is honest. He is a man of his words, I think, and that matters. मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको trust कर सकती हूँ, and I'm very happy to meet him. and मुझे ऐसा लगा that I want to spend the rest of my life with this man. The day I noticed her was the day of our Fun Friday event, and that day she was doing anchoring. So her voice attracted me. So that notices that due to her voice, I got attracted to her because she was doing anchoring of that event. तो हम actually एक ऑफिस में काम करते हैं, तो मुझे वो अच्छे लगते थे. मैं जहाँ बैठती हूँ वो मेरे डायगनली बैठते थे, तो हम डिफरेंट रूम्स में रहते थे, बट फर्स्ट फ्लोर्स थे, सो वी कुड सी ईच अदर, एंड आई हैड अ स्मॉल क्रश ऑन हिम. और मुझे ऐसा हिंट मिला था कि शायद उनका नाम विक्रांत पाटिल है. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे जब ऐसा हिंट मिला मैं घर गई एंड आई टोल्ड माय रूममेट्स आई थिंक हिज नेम इज दिस. सो दे वर लाइक चलो ढूंढते हैं. और हमने फेसबुक पे कुछ ऐसे 20-25 विक्रांत पाटिल्स को स्टॉक किया, एंड देन फाइनली मुझे ये डीपी मिला, ये है. तो वहाँ से फिर मैंने उनको स्काइप पे रिक्वेस्ट भेजा. Then we started chatting on Skype. The first thing she said to me was happy birthday to me. So she wished me on my birthday. So actually we started chatting on my birthday. So I think that's the lucky day. And the things move forward to today's day. তোমার নামে রোদ্দুরে আমি ডুবেছি সমুদ্রে, জানি না যাব কদ্দুরে এখনো. আমার পোড়া কপালে আর আমার সন্ধে সকালে তুমি কেন এলে জানি না এখনো. फिर ही asked me out. हम डेट पे गए, एंड हमारी फर्स्ट डेट पे मैंने क्लियर कर दिया था कि आई एम नॉट अ कैजुअल डेटिंग पर्सन एट ऑल. तो अगर आप ये लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं देन देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग आवरसेल्व्स इनटू दिस. So he said the same thing कि see I am also I'm not looking for a casual relationship. This is serious and this is going forward. So that is how we began. फिर बहुत dates के बाद finally we getting married. We both were on same page that day because we both wanted a serious relationship and taking it for long term. So I think we clicked there, and then I got attracted by her nature and her generosity because she has a giving nature. जिसके लिए करती है पूरे प्यार से करती है विदाउट होल्डिंग एनीथिंग बैक. सो कुछ भी करेगी मेरे लिए हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी बिकॉज शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बट एवरीथिंग इज गिविंग. सो दैट इज वेरी एडोरिंग फ्रॉम हर. याड लागलं रंगलं तुझ्यात याड लागलं वास येऊ साथी येई कस्तुरीचा चाखलं या वार वाड लागलं. Actually क्या है कि we are very different individuals, you know.
हमारी पर्सनालिटी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है. ही इज़ अ वेरी लेड बैक चिल्ड आउट पर्सन. मतलब वो लाइफ को ऐसा रहते कि वन डे एट अ टाइम, जैसे जब होगा मैं तब देखूंगा करूंगा वैसा. एंड आई एम अ कंप्लीट ऑपोजिट. मुझे सब चाहिए कि प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो. एक साल बाद कुछ होने वाला है तो मुझे वो अभी से प्लान करना है वैसा. So obviously differences है which makes this combination even more interesting. One thing I like her the most because she is very organized, and one thing I hate about her is she is extremely organized. So she has extreme OCD. I know I have OCD. I like to keep things at one place, but she has extreme OCD. So she needs one thing to get that place only, not 1 centimeter here or there, and that thing pisses her off. And she will start shouting and all everything if one thing is not at its place. So I think I need to cope up with that. तो उसी differences पे कई बार हमारे कुछ झगड़े होते हैं, but we are quick to patch up again. पहल कौन करता है? Generally वही करता है. वो एक फंडामेंटल है कि गलती हो ना हो आपको गलती माननी होती है. So I have learned that I think very early. So I think it will help me in the future. ऐसे थोड़ी अनबन तो होती रहती है, मोस्टली ड्यू टू द थिंग्स ऑर्गेनाइजिंग थिंग. कि मैं बोलता हूँ कि हो जाएगी चीज़ें, थिंक विल टेक केयर ऑफ दैट, बट शी लाइक्स टू बी ऑर्गेनाइजिंग. कल कैसे करेंगे, परसों कैसे करेंगे, एक साल बाद कैसे करेंगे. सो दिस समटाइम्स वी फाइट ऑन दैट थिंग, बट वी रिजॉल्व आफ्टर 2-3 घंटे के बाद सब इशू सॉर्ट हो जाते हैं. आई थिंक आई विल बी टेम्ड आफ्टर माई मैरिज. आई एम वेरी वाइल्ड पर्सन विथ माई फ्रेंड्स, गोइंग आउट, partying and all things. So I think my life will be organized and I'll be very tamed after that. বিন্দু থেকে সিন্ধু হয়ে যাও, তুমি ইচ্ছে মতো আমাকে সাজাও. যদি সত্যি জানতে চাও তোমাকে চাই, তোমাকে চাই. যদি মিথ্যে মানতে চাও তোমাকেই চাই. Okay, this is an interesting story. हम महाबलेश्वर में थे और we were boating on this river. और मुझे ऐसा था कि मुझे उनको बताना है कि I am seeing this person. और हम बोट कर रहे थे, मैं मेरे पापा और मेरी दोस्त पॉम्पी. We were there और बोटमैन था और एकदम शांत एटमॉस्फेयर था, कुछ बात नहीं हो रही थी. पॉम्पी ने मेरे को ऐसे नच के बताते और मैंने ऐसे बहुत बड़ी सीरियस आवाज में बोला His name is विक्रांत. और उस साइड से कुछ रिएक्शन नहीं आया. मुझे लगा अच्छा ठीक है, शायद पसंद नहीं आया होगा. फिर मुझे 5-6 घंटे हो गए, फिर भी कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. तो मैंने फिर शाम को पापा को पूछा कि हाउ कम आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो. ही इज लाइक टू व्हाट. ही इज लाइक अरे आई टोल्ड यू हिज नेम इज विक्रांत. तो पापा ने बोला द फिशरमैन ना. तो उनको लगा कि मैं बोटमैन का नाम विक्रांत बोल रही. फिर मैंने बोला नहीं, this is the man I'm seeing and I want to get married to him. Plan, she was asking me for a long time to tell that to parents. So she was the first one. She broke the ice at her place. Then eventually I met her father. I was very nervous. I was on continuously chatting with Naina कि ऐसा हो रहा है, मैं निकल गया हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ, कहाँ बैठना है, कहाँ रुकूँ, कितनी देर वेट करूँ, should I come first and greet him or should I wait? What I was constantly chatting with her. I was very nervous. So I was rehearsing my line. How should I introduce first? Hi, hello, how, good evening, sir, or what should I say? I was very curious that time, but he made it very simple. अरे कैसे रिहर्सल कर रहे थे? I'm talking to myself. In cab, I was talking to myself. Literally, I was talking to myself, and while getting ready, I was talking in front of mirror and trying to rehearse few lines because I wanted my first impression to be a perfect one. So that's how I was. And I was very nervous, and I was continuously chatting with Naina, and she was trying to make me calm, but Baba made it very simple in Pune. So we had a casual dinner. Over a few drinks, we decided this.
and it was very casual thing. So he's very chilled out person. So we bonded very great that day. And after that, then I told my mother, and then things started moving forward. मम्मी एक बार हेल्थ चेकअप के लिए सोलापुर पुणे आई थी. तो पुणे में उन हेल्थ चेकअप होने के बाद उन्होंने पूछा कि कौन है, if there is someone I need to know or need to meet. So that time I told her कि there is one girl I am seeing. So ऐसे बात आगे बढ़ती गई, and then I introduced Nainika to my mom. तो फिर उसने बताया ऐसा है, एंड हिज मदर कॉल्ड मी. मैं तब ऑफिस में थी, एंड हिज मदर वाज लाइक, सी आई एम इन टाउन, मुझे शाम को वापस लौटना है ट्रेन से, तो अगर तुम कुछ 5-10 मिनट फ्री हो तो आई वुड लव टू मीट यू. So I told my mom, and she said that I want to meet her suddenly right now. So I thought कि it's okay. I told her, but she was not prepared. It come as a sudden surprise for her, and she was in office in her casual clothes and everything. It was very shock for her. But I was thinking about her कि how she will react to her and how she will manage this shock. But she managed it very well. So I was thinking about Nainika कि how she will cope up with this big news in very short notice. और मैं इतनी नर्वस थी उस दिन, बिकॉज मैंने शैम्पू नहीं किया था, मैं प्लेन ऑर्डिनरी कपड़ों में गई थी, और मैं फर्स्ट टाइम अपनी मदर इन लॉ से मिल रही थी. इसलिए क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा. बट वो मीटिंग में एक्चुअली हम जब मिले कैफे में, तो इनिशियल 5 मिनट्स उनको भी नहीं समझा क्या बोलना है. आई ऑल्सो डिडंट नो व्हाट टू से, एंड विक्रांत वाज जस्ट लाफिंग. बट आफ्टर द आइस वाज ब्रोकन, आई थिंक मेरी मदर इन लॉ से ज्यादा बात होती है. My mom said खूब सुंदर है and खूब गोड है. So मेरे mom and I am very proud of them. Always been and always I will be. तो उन्होंने ये चीज बहुत फ्रेंडली ली, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट इंटरकास्ट, इट्स इंटर स्टेट मैरिज. आई एम महाराष्ट्रियन, शी इज बंगाली, दैट टू कल्चर्स आर गेटिंग मिक्स. सो ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए आई थॉट दे विल बी क्वाइट सम हेजिटेंसी फ्रॉम देयर साइड, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट. सो दे एक्सेप्टेड ओपन आर्म्स, एंड सेम थिंग विद माय भैया एंड भाभी. दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव. घर फील हुआ मुझे. एक्चुअली लगा नहीं कि मैं मतलब ससुराल जा रही हूँ, इफ आई कैन से दैट. मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत अनजान लोगों से मिल रही हूँ या नई जगह जा रही हूँ. आई फेल्ट एट होम. मतलब मुझे ऑकवर्ड नहीं लगा. कोई भी ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं थे, या वो नहीं था कि अब क्या करूँ, क्या बोलना है, कैसे बैठना है. तो मैं कंफर्टेबल थी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे. एंड जब मैं उनके फैमिली से भी मिली, मुझे मतलब वो बॉन्डिंग में इट वाज अ वेरी एफर्टलेस बॉन्डिंग. सबके साथ, उसकी फैमिली में सबके साथ, बिकॉज एवरीवन इन हिज फैमिली इज वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, और आई थिंक हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से मैच होती है. सो आई फील जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है इन दिस फैमिली, आई होप कि वो बस बेटर एंड बेटर होते जाए फॉर एज लॉन्ग एज वी लिव. आँखों ने जो सपना देखा, चल दिल उससे पूरा. मैंने अपनी लाइफ में बहुत गिनी चुनी शादियाँ देखी है, और मेरे घर में मेरे जनरेशन का तो ये फर्स्ट है. तो मेरे घर पे अभी जो एनवायरनमेंट है, इट इज़ अनपैरेलल्ड. मतलब मैंने एटलीस्ट इस तरह का माहौल तो नहीं देखा था. एवरीवन इज सो हैप्पी, एंड मतलब उनके हाथ पैर चल रहे हो या नहीं, वो काम कर रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं, खुश होके, यू नो. तो आई फील कि शादियों में ये जो डेकोर हो गया, ग्लैमर हो गया, लाइट्स, ये सब बहुत एक्सटर्नल चीज़ें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द काइंड ऑफ लव एंड वार्मथ एंड जितना आशीर्वाद हमें मिल रहा है, एंड द फैक्ट दैट एवरीवन's हैप्पी दैट two families are coming together and at this reunion, I think that is far more important. तो ये सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी होती हैं, बट सब इस पूरे इवेंट में इतने खुशी से और
मन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ होती नहीं है। हाउएवर मैं अपने घर पे सबसे क्लोज अपने दादू से थी, मोर देन माई पेरेंट्स। तो घर पे बहुत शादी वाला माहौल जैसे होता है, बट वो जो एक एब्सेंस है वो है, इट्स अ अनडिनाइबल एब्सेंस। एंड मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर वो होते तो आई थिंक उनसे ज़्यादा ये फंक्शन कोई नहीं एंजॉय करता। एंड ही वुड हैव लव्ड विक्रांत। मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी YouTube पे कि कैसे हो सकता है और हाउ टू मेक इट परफेक्ट। तो उसके लिए मैंने रिहर्सल की, बट आई हैड वर्ड विद माय भाभी एंड वी ट्राई टू मेक इट कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल विदाउट एनी फर्दर एंड एनीथिंग। सो इट वाज दिस वाज बर्थडे आल्सो एंड सो आई वांटेड टू मेक इट वेरी सिंपल एंड रोमांटिक। So at the end I went with my gut feeling. जब अपन सोचते हैं यार वीडियो देखते तो ऐसा लगता है कुछ ऐसा फिल्मी सा भी कुछ गाना आया होगा। वो क्या था? वो फिल्मी सा आपके दिमाग में क्या था? फिल्मी सा वैसे था कि I should get down the knee and propose her, और मैंने वो जगह भी वैसी चूज की थी कि रोमांटिक डेट था, पूल साइड हम बैठे थे, कैंडल लाइट डिनर था। So I tried to make it as filmy as possible. মনের গভীরে ঘুমের শরীরে তোমাকে নিয়ে ডুবে যাব। I rehearsed 2-3 lines here. क्या? Happy birthday, will you marry me? So that was my line to write. So उससे पहले मैंने उधर होटल मैनेजमेंट से बात की थी, I want this to be done. So I waited for everyone to leave. I deliberately waited that everyone, the hotel should be quiet, and then I proposed. ऐसे तो बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पर कैमरे के लिए बोलूंगा, अभी तुम्हारे आने की भालूबाशी।